Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths perimeter in area, and the practice set we are going to do as a 46. So the first question out of the practice set 46, I am going to read it. Kindly listen it very carefully. A page of a calendar is 45 centimeter long and the 26 centimeter wide. What is its area? आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक कैलेंडर है जिसका पेज जो है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका विड्थ जो है आपको 26 सेंटीमीटर दिया है। आपको उस पेज का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको शुरू करेंगे। सो हियर विल राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन एज लेंथ of the rectangular page is equals to 45 centimeter, 45 centimeter, while the width is given to us, width of the page is equals to 26 centimeter, है ना? So here 26 centimeter we have written. Now what we are supposed to find out? We are supposed to find out area of the page is equals to question mark. Therefore area of the rectangle is equals to length into breadth. Okay, this is the formula, so we should highlight it, है ना? तो हमने इसको यहाँ पे highlight करके लिखा. Then here what we are going to do? We are going to substitute the value, है ना? तो area of the page is equals to length into breadth. Okay, so therefore यहाँ पर हमने लिखा area is equals to how much? लेंथ कितना है हमारे पास? 45 सेंटीमीटर into 26 सेंटीमीटर. That will be equals to, if we will multiply together them both, so the answer will comes as 117,670. It's the 70. So 1170 is the answer, that is centimeter square. So here the answer is, therefore the area of the page is equals to 1170 centimeter square. This is our final answer. बहुत ही इजी है। आपको क्वेश्चन में दिया था रेक्टेंगुलर पेज है जिसका आपको क्या दिया था, लेंथ दिया था 45 सेंटीमीटर, आपको विड्थ उसकी प्रोवाइड थी 26 सेंटीमीटर, आपको क्या बोला था कि एरिया फाइंड आउट करो. सो वी आर हैविंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो सिमिलर वे वी हैव केप्ट दिस फॉर्मूला फॉर द page. So here we had written the area of a page is equals to length into breadth. So therefore area is equals to 45 into 26 centimeter. So therefore 1170 centimeter square is the answer. So therefore we had written area of the page is equals to 1170 centimeter square. ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम लोग वहां यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, what is the area of a triangle with the base 4.8 centimeter and the height 3.6 centimeter. अब यहाँ पर जो है आपको जो है क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आपको बेस और हाइट प्रोवाइडेड है. आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर उसके लिए एरिया फाइंड आउट करना है. ये वाला जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किए, इसमें जो है हमको जरूरी है कि हमें छोटा सा डायग्राम बना ले. हम जो है यहाँ पर पहले डायग्राम बना करके आपको देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पर कितना है, लेंथ जो है पेज की 45 सेंटीमीटर है
और यहाँ पर जो है 26 सेंटीमीटर है। तो इससे जो है हम समझ सकते हैं कि पेज जो है कैलेंडर का वो कैसा होगा। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। Now here we have drawn the triangle that is having a base as 4.8 centimeter and the height as 3.6 centimeter. After drawing this, we are supposed to write down the information over here. Base of the triangle is equals to 4.8 centimeter. Okay, then its height of the triangle is equals to 3.6 centimeter. Now we are having a formula. We are supposed to find out the area of a triangle. Area of a triangle is equals to question mark. Therefore we are having a formula of the area of triangle. Area of triangle is equals to half into base into height. ओके, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है, हमने इसको हाईलाइट करके लिखा. देन आफ्टर दैट देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, है ना. तो बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस दोनों भी लिख सकते हैं. तो यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू वी आर हैविंग 1/2 इंटू 4.8 इंटू 3.6 सेंटीमीटर and here also we are supposed to write down the centimeter into. okay, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिलेशन दैट इज 2.4. ओके, तो अब जो है हम क्या करेंगे, इस 2.4 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2.4 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 8.64 सेंटीमीटर. तो लास्ट में हमको आंसर यहाँ लिखना है, हम उसका आंसर यहाँ पर आपको लिखकर बता रहे. देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल will be 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर विच वी हैव फाउंड. बहुत ही इजी था. क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 4.8 सेंटीमीटर. Height is given to you as 3.6 centimeter. Area of a triangle we are supposed to find out. So we are having a formula as area of the triangle is equals to half into base into height. So therefore this formula we have to further. So area of the triangle is equals to half into base into height. So therefore we have kept the values half into 4.8 into 3.6 centimeter. Centimeter twice we will write down. So here it will be cancellation. Then after the cancellation 2.4 into 3.6 together will be multiplied. So therefore they will give the 8.64 centimeter square. So we had written here the final answer as area of the triangle will be 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. चलिए अब जो है हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, what is the value of the rectangular plot of the land 75.5 meter long and 30.5 meter broad at the rate of 1000 rupees per square meter. आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है.
यहाँ पर जो है आप क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ जो है 75.5 मीटर है और उसका विड्थ जो है 30.5 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि अगर वो प्लॉट जो है 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर में बिकता है तो कितने रुपए में आपको मिल जाएगा, यानी उसका आपको कीमत फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए इस सम को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। Now here we have drawn the diagram for the rectangular plot. So here the length is given to us 75.5 centimeter, while the width is given to us as 30.5 मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर मीटर है। ओके, तो ये आपको मेजरमेंट्स दिया है। आपको इस पूरे वाले प्लॉट का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करने के बाद जो है इस पूरे एरिया को हम क्या करेंगे, कितना स्क्वायर मीटर में हमको मिलता है उससे मनी से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द rectangular plot is equals to how much, that is 75.5 meter. Okay, then breadth of the plot is equals to how much, 30.5 मीटर। तो 30.5 मीटर। ओके, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द cost of the plot is equals to question mark. So for therefore we are supposed to find out area of the plot, है ना। So which will be equals to what, length into breadth, length into breadth। ओके, तो यहाँ पर एरिया जो है therefore एरिया इज इक्वल्स टू हाउ मच, लेंथ कितना है हमारे पास 75.5 मीटर इंटू ब्रेड कितना है हमारे पास 30.5 मीटर, which will be equals to, now if we are going to multiply this we are going to get that 22,302.75 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर आ जाता है किसके लिए, एरिया ऑफ अ प्लॉट के लिए। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अब हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्लॉट भी लेना है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, प्लॉट वैल्यू है ना, इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, है ना। सो देयरफॉर व्हाट वी आर सपोज टू डू, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट is equals to area of plot into 1000 रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे हम, therefore this will be equals to एरिया ऑफ अ प्लॉट कितना है हमारे पास 2302.75 इंटू 1000 कितना आ जाएगा रुपीस। ठीक है, तो अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। So here what we had written, therefore the value of the plot is equals to 2302.75 into 1000. So if we have multiplied, so it comes as 23,02,750 rupees. So therefore we had written that the plot will be available in the 23,02,750
रुपीज। तो इस तरह से हमारा ये सम भी जो है कंप्लीट होता है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड of the square tile of the side 30 centimeter. How many tiles will fit in the entire hall? How many would be required if the tiles of a side 15 centimeter were used? मतलब आपको क्या दिया है कि एक जो है बड़ा सा हॉल है जिसमें फ्लोरिंग कर करके जो है क्या कर रहे हैं, जगह को बना रहे हैं। तो जब फ्लोरिंग हो रही है तो उसमें जो है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है स्क्वायर टाइल्स जो है वो लगाई जा रही है। तो हमको ये बताना है कि कितनी टाइल्स जो है वो पूरे हॉल में लगेगी अगर 30 सेंटीमीटर की है तो, और अगर हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर वाली यूज की है तो हमको कितनी जो है टाइल्स लगती है। यानी हमको दोनों के लिए बताना है, 30 सेंटीमीटर के लिए भी और 15 सेंटीमीटर के लिए भी, कि कितनी टाइल्स हमको लगेगी। ठीक है, तो आइए इस सम को भी हम सॉल्व करते हैं। So here for the fourth question we have drawn the diagram over here, and after drawing the diagram we have written here length of the rectangular hall is equals to 12 meter while the breadth of the rectangular hall is equals to 6 meter. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड नंबर ऑफ टाइल्स, है ना। हमको ये भी पता करना है नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लग रही है। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 12 मीटर इंटू 6 मीटर, दैट वुड बी इक्वल्स टू 72 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा जो है हो चुका है। अब इसे जो है हम यहाँ पर अपने पास सेव करके रखेंगे। अब जो है नेक्स्ट वाले में हमको क्या करना है, स्क्वायर टाइल का जो है क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर जो सो हियर वी आर कंप्लीटिंग साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, है ना। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये कैसा हो जाएगा, 30/100 विच विल बी इक्वल्स टू दिस बाय दिस कैंसिल। तो 3/10 कितना हो जाएगा, 3/10 मीटर। ओके, ये हमारा यहाँ पर जो है 3/10 मीटर आ जाता है। अब हमको क्या करना है, इस स्क्वायर टाइल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम इस स्क्वायर टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो हियर व्हाट इट इज, वी हैड written area of the square tile is equals to side square, so therefore it will be equals to 3/10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/100 मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हम टाइल के लिए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं पूरे एरिया के लिए, तो हम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर 30 सेंटीमीटर ऑफ टाइल्स, है ना। कितनी टाइल्स लगेगी, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर 30 सेंटीमीटर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ पर कैसे लेंगे हम इसको, एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टाइल्स। ओके, तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया कितना है यहाँ पर हॉल का, 72/9/100। ओके, यहाँ पर जो है इसको किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू 72
यहाँ पर ये वाला इंटू 100/9, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72. सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 800 टाइल्स. ओके, ये हो गया हमारे पास 800 टाइल्स. अब हमको क्या करना है एक्चुअली, अब यहां तक होने के बाद आपको कंडीशन क्या दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर टाइल की साइज को हाफ कर दिए यानी 15 सेंटीमीटर कर दिए तब जो है हमको कितनी टाइल्स लगेगी, हमको ये बताना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ वी जस्ट हाफ द साइड of the tile to 15 centimeter, then the area will be 1/4 of the original टाइल, यानी बड़ी वाली टाइल का 1/4 हिस्सा जो है क्या रहेगा, एरिया रहेगा. तो यहाँ पर जो है हम किस तरह से लिखेंगे, देन नंबर ऑफ स्मॉल टाइल्स, है ना, नंबर ऑफ स्मॉल टाइल्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 800, दैट विल बी इक्वल्स टू 3200. कितना आएगा, 3200. समझा. तो अब जो है हमको लास्ट फाइनल आंसर लिखना है इसका. यहां तक के बहुत ही इजी है. तो यहाँ पर हमने फाइनल आंसर लिखा, देयरफॉर द नंबर ऑफ बिग टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी 800 व्हाइल द स्मॉल टाइल्स विल बी 3200. ओके फाइन. तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया. लेट अस गो विद द फिफ्थ क्वेश्चन. आपको एक फिगर दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द गार्डन विच मेजर्स आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो. अब जो है आपको क्या दिया है, एक फिगर दी गई है जिसमें मेजर्स दिए गए हैं. आपको उस फिगर को देखते हुए उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों भी आपको ढूंढना है. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो है फिगर हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ड्रॉ कर लेंगे. यहीं से हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे. तो फिगर जो है वो कैसी है, इस तरह से, है ना. ओके, ये फिगर आपके सामने दी हुई है यहाँ पर ऐसे. ऐसे, ठीक है. ये एक फिगर आपको प्रोवाइडेड है. यहाँ पर हर साइड जो है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. ठीक है. तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी साइड्स लिखेंगे. सो साइड ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू 13 मीटर. सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीटर है. हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे, आप जो इसको सिर्फ और सिर्फ मीटर लिखेंगे. तो यहाँ पे 13 मीटर जो है हर साइड है. नाउ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 and 12. So number of sides are 12. Okay, so therefore we are going to find out the perimeter here. Therefore perimeter of the garden is equals to 12 number of sides into length of a side, है ना। तो यहाँ पर जो है 13 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 13 इंटू 12 इट विल बी 156 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट हो गया है। अब जो है हमको क्या करना है, पूरे उसके लिए हमको क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द व्हाट द पर्टिकुलर एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर दैट पर्पज। यहाँ पर अब देखिए ये जो है एरिया फाइंड आउट करना है। जिस तरह से यहाँ पर लाइंस थी जो हमने यहाँ पे आपके सामने जो है मिटा दिए, ये लाइंस को देख करके आपको लगता है कि ये जो है पूरा का पूरा स्क्वायर शेप है। फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर है ना, फिफ्थ वन। यहाँ पर नंबर लिख करके बताते हैं आपको, आपको समझ आ जाएगा। थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज योर फिफ्थ। तो कुल कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं स्क्वायर्स है, पूरे के पूरे 5 स्क्वायर्स है ना। और हर एक की साइड कितनी है, 13 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 5 है ना। एंड साइड तो हमारे पास पहले ही है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू side square, that will be equals to 13 मीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 169 मीटर स्क्वायर ये हो गया है एरिया एक स्क्वायर के लिए, यानी ये एक भाग के लिए, ये स्क्वायर पार्ट के लिए, समझा। तो अब ऐसे कितने पार्ट है, टोटल 5 पार्ट है। तो हमको क्या करना है, अभी ये स्क्वायर के लिए पूरे वाले 5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ द गार्डन। यहाँ देखिए अब हमने लिखा एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द वन स्क्वायर पार्ट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू number of the square is 5 and the area is 169 meter square, that will be equals to 845 meter square। okay, so यहाँ पर जो है हमारा एरिया जो है क्या हो गया है, एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू 845 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन will be 156 meter, while its area will be 845 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 46 भी जो है वो कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए इससे आगे वाली एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस सेट 47। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और दुआ कीजिए कि आपकी टीचर आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियोस लेकर के हमेशा आपके पास आते रहे। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।